Good evening, everyone. आज thank you so much for giving so much of love towards the RBN and then Nagendra Singh channel. Okay, today we'll start chemistry, 11th chemistry, fourth chapter, that is chemical bonding. Okay, why it is important? Why the fourth chapters are like fourth chapter is so much of important? Because there is like lot of concepts are there in the fourth chapter. We have we have bonds, we have shape of the orbital, we have VSE pair theory, we have molecular orbit theory, we have different types of bond, we have hybridization, we have like so many things. Like it's a बहुत ज़्यादा. Okay, so many concepts are there in the 11th standard, and that is also the third, fourth and fifth chapters are very important in the 11th part. So अगर आप लोग ने ये chapter नहीं पढ़ा, then there is no use to go in the 12th standard because वो भी आपको समझ में नहीं आएगा. तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके पहले सारे कॉन्सेप्ट को. तो सबसे पहला पार्ट आई एम टेकिंग ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. ओके, आई जस्ट से दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर और कंटेंट ऑफ द चैप्टर. सो व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. So what is the content of the chapter? First we have types of bonding. Okay, types of bonding. Okay, and then we have different types of bonding we have over here. Then we will be telling you about the shapes of the orbital. Okay, orbital. Then we have VSEPR theory. Okay, just I'm saying that important part in this chapter, important concept in this chapter कि like types of the bonding है इसके अंदर, shapes of the orbitals है, molecules है इसके अंदर, shape of the molecule. Okay, तो आप लोगों को सारे के सारे चीजें मैं बता रहा हूँ. VSEPR थ्योरी, MOT है, molecular orbital theory. Okay, hybridization है. Okay, हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर. ओके, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है. सो बहुत सारी चीजें हैं. ओके, दिस नॉट इन ऑर्डर बट द कंटेंट इज व्हाट कि विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग, विल बी लर्निंग अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, VSEPR थ्योरी, MOT, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी लर्निंग, शेप्स कैसे उसका. ओके, टाइप ऑफ एवरीथिंग, पेयर्स, लोन पेयर, एवरीथिंग विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर. दैट्स व्हाई इट इज very important. Electron and dot structure will be learning in this part. Okay, electron and dot structure will be learning. Okay, dot structure in this part will be learning. Okay, so why I'm just focusing more in the chemical bonding. क्यों इतना ज्यादा फोकस हो रहा है? क्योंकि इतने सारे चीजें इसके अंदर, अगर आप if you don't know the basics, okay, everything is going to come in the next chapter, next examination or next classes. Okay, 12th में आएगा. तो बहुत ज्यादा चीजें नॉर्मल हो जाती है अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो. तो दैट्स कॉल्ड कि लाइक दीज आर द बेसिक्स पार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको एक चीज बताता हूं सबसे पहले. ओके, इन द प्रीवियस आप लोग ने जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग ने ऑलरेडी you have studied about the periodic classification. In that one we have S and P orbital. Okay, so something I'll be telling you about the S orbital. Okay, and something like some of the part in the P orbital. Okay, P orbital. Okay, so both called in the S and P. Okay, representative element. Okay, representative element. Okay, elements. So those are representative elements. We have representative. देखिए S orbital है, we have S orbital, P orbital, D orbital and F orbital. Okay, S orbital, why it is S orbital? Because last in valence shell are in S orbital. Okay, valence shell are in S orbital. Okay, outermost electronic configuration we have in the S orbital, like that, like जो इसके आगे जो मतलब कि in what and all there will be in the S orbital, their outermost electronic configuration will be in the S orbital में होगा. वो किस में होगा? S orbital में होगा. We have right S, P, D and F orbital. आप लोग ने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में. तो outermost valence shell are filled in S orbital, valence shell electrons, you can say electrons are in S orbital. इसमें देखिए valence electron are in P orbital. Okay, so they are highly reactive metals. Okay, S orbital, all the S orbital elements are highly reactive metals. highly reactive metals होते हैं ये. अब देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते ही होते हैं,
ओके साथ ही साथ जो मेटल्स होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल्स, मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल्स क्या करेगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर आई एम गिविंग समथिंग टू एनीवन, ओके अगर मैं किसी चीज को, मैं कोई चीज किसी को दे रहा हूं तो वो लेने वाला भी तो होना चाहिए। अगर ये मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सो व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस वन, एस ऑर्बिटल, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके इफ दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, p ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट करते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके ये एक्सेप्टर होते हैं। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते हैं ये, दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज यू नो दैट एक्चुअली this part, okay, the moment once will be coming up to down, okay, from top to bottom we have like size will increase, size क्या होता है, increase होता है। okay left to right, metallic character will decrease, decrease होता है मेटालिक कैरेक्टर। ओके सो याद रखिएगा इन चीजों को, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके दे हैव टू ग्रुप्स, ओके टू ग्रुप्स वी हैव, ओके इन दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ओके सो s ऑर्बिटल्स आर इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ओके फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ओके तो अगर ये दो ग्रुप में है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ओके सो व्हाट इज द मीनिंग दैट दे कैन जस्ट डोनेट one electron and they can donate 2 electron, everything there in the this chapter, okay periodic classification, the third chapter। तो मैं आपको third chapter का कुछ पढ़ा और so that I can go in this part, bonding part। okay so here we have 13 to 18 group element, 18th group element। okay 18th group element, okay they are less reactive। what we have here over here, metals, non-metals, okay metals and non-metals, metalloids, okay metalloids, okay and then we have noble gases, okay 18th group are known as noble gases। याद रखिएगा इन चीजों को, ये 13th ग्रुप एलिमेंट एंड 13 टू 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं ये। ओके ये टू ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, दे हैव 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप। ओके नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इधर पे आता है आप लोगों की, ये एक्चुअली इनका जो बिहेविंग है, व्हाई व्हाट इज द, कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितने इन लोग देते हैं, सो दैट ओनली पार्ट आई हैव टू नो। ओके देन ओनली आई कैन गो फॉर द बॉन्डिंग पार्ट, उसके बाद ही मैं बॉन्डिंग पार्ट में जा सकता हूं। तो आई रब दिस पार्ट। Now one thing is very important कि what and all the elements come in the first part and second part, okay first group and second group and 13th group, 14th group और 15th group में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं ये दूंगा, उसके बाद आप लोगों को इसका शॉर्टकट देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को इसको क्या कहते हैं कि यूज करना है। देखिए इन द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, देखिए कम इन द एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ग्रुप में आता है आप लोग का हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके नेक्स्ट उसके बाद आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, Sc, बेरियम, रेडियम। ओके सो अब देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वन। ओके व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वन। ओके सो दीज आर सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ओके सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ। ओके 7। अब देखिए बहुत चीजें इसी से पता चल जाएगा कि ऑल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns1, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns1, n is the number of period. Okay here what is the electronic configuration, ns2, where n is the number of period. Okay so they will donate, by this I want to say that they will donate 1 electron and they will donate only 2 electron. Okay
they will donate 1 electron and they will donate 2 electrons. The second group will donate 2 electron, first group of element will donate only 1 electron. So lithium कभी भी stable नहीं है. Lithium is not stable, but Li plus is stable because lithium का electronic configuration, outermost electronic configuration क्या है इसका? Lithium is 3, so that is 2,1. So if it will reduce the 1 electron, अगर if it donates the 1 electron, it comes Li plus. Li plus is the stable configuration. क्या है stable configuration इसका? Li plus is stable configuration. Okay, stable configuration. Okay, so Li plus will exist, Li will not exist. Lithium exist नहीं करेगा कभी, Li plus will exist. Okay, Li plus will exist, Li will not, lithium will not exist. Same thing, Na will not exist, Na plus will exist. Okay, so see here what is the lithium. Lithium का कितना है 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम का कितना है 2,8,1 है. ओके, पोटेशियम का कितना है ओके 2,8,8,1. सो इफ they will remove 1 electron and they will come attend the electronic configuration, so they will attend the stable configuration. सो आप मैं चाहे कोई भी हो इंसान क्या करता है, सब लोग ये करते हैं कि सब लोग इस लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं. जो स्टेबल है नहीं है वो स्टेबल होना चाहता है, जो स्टेबल है वो स्टेबल ही रहना चाहता है. राइट, तो यही चीजें इधर पे होती है मेरे प्यारे बच्चों कि लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइक s ऑर्बिटल्स, ऑल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, दे आर नॉट स्टेबल. वैसे ही 13th ग्रुप एलिमेंट, 14th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट, दे आर नॉट स्टेबल. Okay, they are not stable. So how they will be getting stability, how they will attain the stability. So वही इधर पे रेस चल रही है, इधर पे वही रेस चल रही है कि कौन कैसे स्टेबिलिटी अटेन करेगा. ओके, तो आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन देखिए ये ऐसा मित्र है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे के स्टेबल होगा. और पी ब्लॉक में we have the friends like that, the friends which take something, then they will get stability. So they are the giving hand and taking hand is what p block element. All the p block elements हैं, taking hand और giving hand कौन है, s block element है. समझ जाइएगा इस बात को, अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि s block element always it gives the electron, it just like electron donor, और जो डोनेट करता है वो प्लस. एंड p block elements आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एंड देन दे विल बी गेटिंग स्टेबिलिटी. व्हाई दे आर गिविंग दैट, व्हाई, अरे फालतू में कोई कुछ किसी को कुछ नहीं देता. दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन बिकॉज द रीजन दैट इफ दे विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन देन ओनली दे विल बी गेटिंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. देखिए इधर पे 2 है, 8 है, दे विल गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. If they will give 1 electron, then they will be stable configuration. If they will give 2 electron, then they will be stable configuration. भाई आप भीख दे रहे हो किसी को, अगर भीख लेने वाला कोई ना हो तो देने का कोई मतलब, नीचे गिरा दोगे नहीं ना, आपके मन को तृप्ति नहीं मिलेगी. राइट, once you are giving something, यार when you are donating something, अगर कोई होगा नहीं लेने के लिए तो what is the use of giving that? नीचे तो नहीं गिराओगे तुम, वही चीज है. तो when they are giving that, who is taking that part? अरे यार उधर पे p block elements are taking that part. ओके, तो रिलेशन, गेट द रिलेशन, सारे के सारे एवरीथिंग. ओके, ऑल द रिलेशन ना मैंने ऑलरेडी लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका है कि कैसे रिलेशन पॉसिबल होता है. अगर वो आपने हमारी वीडियो देखी है तब आपको ये चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Okay, so now what is there? Lithium we have, so in this thing stable configuration we have like same part over here in the second group. You just see beryllium का कितना है 2,2, मैग्नीशियम का कितना है 2,8,2. okay, so chromium का कितना है 2,8,8,2. see they will remove the 2 electron and then they will get stability. okay, they will get stability. okay, so here these are the first group element, they are the first group element. okay, and they are the second group element. okay, second group element. okay, electronic configuration is the most important part my dear student. okay, अगर आप लोग if you know the electronic configuration, okay, if you completed the Afbah principle, sorry like first this part we have principal quantum number, azimuthal quantum number, okay, and then magnetic quantum number and spin quantum number. उसके बाद आप लोग ने Pauli exclusion principle, Afbah principle पढ़ा होगा, तो Hund's rule of maximum multiplicity, अगर ये सब पढ़ा होगा तो आप लोग को सारी चीजें पता होगा. आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पता होंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ द वैलेंस शेल,
What is the use of all these are the valence cell? Outermost electronic configuration is what? NS1. Outermost electronic configuration is what? NS2. ठीक है, होप आप लोग को पता चल रहा होगा इन सब चीजों के बारे में. What I am talking that. Now listen here. अब बात आ जाती है कि व्हाट इज द मींस पी ब्लॉक एलिमेंट के कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होता है. चीजें देख लीजिए इधर पे. पी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 13th ग्रुप, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th. ओके, 13th ग्रुप है, 14th ग्रुप है, 15th ग्रुप है, 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है, 18th ग्रुप है. ओके, मैक्सिमम मैंने बोला था कि इफ एनीवन इज स्टेबल, वो स्टेबल ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा. सो 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये नोबल गैसेस होते हैं. ओके, दे आर द नोबल गैसेस. ओके, नोबल गैसेस. ओके, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है. 18th ग्रुप एलिमेंट कभी भी लाइक शेयरिंग कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि इनको चाहिए नहीं. दे डोंट वांट द शेयरिंग, राइट. नाउ 13th ग्रुप एलिमेंट व्हाट वी हैव? We have starting from carbon. Okay, 13th group element are 13th group element है हमारे पास बोरोन, कार्बन. Okay, we have over here nitrogen family and then oxygen family and then fluorine family. Okay, and why this group is very like important? Fluorine is the highly electronegative element. उसके बाद आता है आप लोग ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन. सो फोन याद रखिएगा, फोन FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में बहुत पहले याद रखिएगा सब चीज. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये सब लोग. ओके, सो फ्लोरीन ओवर हियर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद रखिएगा सीरीज को. ओके, सो बोरोन है, बोरोन फैमिली इज 13th ग्रुप, कार्बन फैमिली इज 14th ग्रुप, 15th ग्रुप इज व्हाट? नाइट्रोजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप, 17th ग्रुप इज व्हाट? फ्लोरीन फैमिली. एंड उसके बाद आता है आप लोग का हीलियम, नियॉन, सारे नोबल गैसेस आते हैं. चीजें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये चीजें ये बताया गया है. ओके, अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं सारा का सारा चीज आपको लिख देता हूं. ओके, लिसन हियर. ये आप लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है. एंड एवरीवेयर यू हैव द 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप. सो 13th ग्रुप नोन एज द बोरोन फैमिली. इसको बोलेंगे व्हाट वी विल बी सेइंग दैट दिस आर द बोरोन फैमिली. ओके, बोरोन फैमिली. हियर वी हैव कार्बन फैमिली. ओके, कार्बन फैमिली. एंड हियर वी हैव nitrogen family, or also we will say that also with that nicogens. Okay, इसको बोलेंगे nicogens. Okay, ये है like we have oxygen family, and also known as chalcogens. Okay, and next we have halogens. Okay, fluorine family, halogens. Okay, fluorine family. ओके, नाउ लिसन हियर. चीजें आप समझ जाइए कि हो क्या रही है. हियर द रेस इज टू गेट द स्टेबिलिटी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? आइदर यू शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 32 इलेक्ट्रॉन. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यू विल बी सेइंग दैट डुप्लेट. ओके, हियर वी हैव octet configuration, and here we are beyond octet और मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल, कुछ भी बोल सकते हैं. बियॉन्ड ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन 18 एंड 32. ओके, सी गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आइदर यू शुड हैव 2 और यू हैव 8 और यू हैव 18 और यू हैव 32. दिस डिपेंड अपॉन द शेल आल्सो, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. Okay, so what is the outermost electronic configuration? Then only I can able to say you that कि outermost में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए.
Okay, so come that p block element, in the p block element you might have studied about in the p block element. Okay, p block element में you have studied before कि what is the outermost electronic configuration of p block. So that is ns2 np126. याद रखिएगा बहुत चीजों को, ns2 np126. अब ये कैसे होगा ns2 np126, मैं आप लोगों को बताता हूं, चेक करिए. देखिए दिस 13th ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ns2 np1, ns2 np1. ओके, 14th ग्रुप एलिमेंट ns2 np2, 15th ग्रुप एलिमेंट ns2 np3. ओके, 16th ग्रुप एलिमेंट ns2 np4, 17th ग्रुप एलिमेंट ns2 np5, 18th ग्रुप एलिमेंट ns2 np6. अब देखिए, नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स मी लाइक, वो सब कुछ बता देते हैं, एवरीथिंग. ओके, अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट. s orbital is 1 and p orbital. In that p you should have at least, fully filled means you should have 6 electron, right? 6 electron you should have. p के अंदर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट? p के अंदर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6. नाउ कितना इधर पे कितना, 1 है. सो आई नीड मोर 5 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दैट दिस पार्ट विल गेट स्टेबल. समझ में आ गया? या फिर एक लूज करो. ओके, आइदर यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट आई शुड गेट द डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, और यू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन सो दैट आई कैन गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. इसमें देखो 2 + 2 4, आई नीड मोर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. Here you see, I need more 3 electron to complete, because 3 + 2 is 5 and total I need 8. Okay, so I need more 3. I need more 3 to complete the octet configuration. I need more 2. I need more 1. I need 0 to complete the octet to complete the stability. Okay, here I need 4. Here I need 3. Here I need 2. Here I need 1. अब देखिए, याद रखिएगा मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि in s orbital first group element they will give 1 electron. So in the 17th group element they will take that 1 electron. रिलेशन देखिए, रिलेशन देखिए क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेशन ओवर हियर. ओके, एज मच एज यू आर गिविंग टू मी दैट मच आई विल टेक फ्रॉम यू, एंड सो दैट यू ऑल्सो गेट स्टेबल एंड आई ऑल्सो गेट स्टेबल. सो 13th ग्रुप 17th ग्रुप एलिमेंट आर कनेक्टेड विथ द first group element of s block element, so that they both make a bond and they will be getting the stability. याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, 7 बोरोन, आयोडीन एंड aluminum all have the outermost electronic configuration is what, ns2 np7, sorry np5. So total 5 + 2, total 7 electron will be there. Okay, so whenever I'll be writing fluorine, I have to manage 1 2 3 4 5 6 and 7 electron. 7 electron over here I have to find, I have to write whenever I am writing the fluorine. ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा. Okay, whenever I am writing the oxygen, I have to write like this. Oxygen कभी भी, so 1 2 3 4 5 and 6, 6 electrons are there in the oxygen. Outermost में check करिए, 4 + 2 6. So it needs more 2 electron to complete the octet. So stable configuration तब अब मेरे को मिलेगा. Okay, so चीजें समझिए. Okay, लिंक करिए कि what is the most important part. Okay, 2 + 2 4, so it need more 4 electron to complete the octet. So और 4 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास. 3 + 2 is 5, so it needs more 3 electron to complete the octet. 4 + 2 6, it needs more 2 electron to complete the octet. Okay, वही everything, these are known as valency, my dear student. Valency जितना चाहिए, how many electrons I need to attain the stable configuration, that is known as valency, oxidation state. Okay, 4 to 5 + 2 is what, 7 plus more 1 electron is needed to complete the octet. So or 6 + 2, so these electrons are neither going for like neither going any reaction, okay, nor any formation of anything. Like I say that कि they are कभी भी ये लोग कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी चीजें नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑलरेडी दे आर स्टेबल. स्टेबल हम लोग क्या चाहिए? Okay, so maximum thing will be possible from boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Boron, carbon, nitrogen and oxygen and fluorine. Okay, and remind the electronic configuration, that is called ns2 np1, ns2 np2, ns2 np3. और याद रखिए, और एक चीज तरीका है इसको याद करने का. क्या तरीका है? 13th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3.
14th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितना होगा 4, 15th ग्रुप के आउटर मोस्ट में 5, 16th ग्रुप के आउटर मोस्ट में 6 एंड 17th ग्रुप के आउटर मोस्ट में 7। तो ये भी एक तरीका है कि 17th ग्रुप का एलिमेंट है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट में होगा। Okay, 16th group element is there, so 6 electron will be there in the outermost. 15th electron, 5 electron will be there in the outermost, and see that is carbon. Okay, 14th group 4 electron. तो ये चीजों को याद रखिएगा। Okay, आज का क्लास इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बॉन्डिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। विल गो थ्रू द ऑल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, देन सिग्मा पाई, ओके, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एवरीथिंग विल बी लर्निंग। ओके, आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओके, और आपके इतने ज्यादा लाइक सपोर्ट के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, हर चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एवरीथिंग, ओके, लाइक एंड जस्ट पुश द जस्ट क्लिक द बेल बटन। ओके, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग उसका पता चल जाएगा और आप लोग उसको देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपको, आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग और विथ द न्यू कॉन्सेप्ट एंड विद द न्यू वे के साथ, न्यू चीजों के साथ विल टॉक। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड बहुत बहुत बड़ा सा प्यार आपको। थैंक यू।